Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to lecture number 29 of Software Engineering 1 CSE 291, and today is our second lecture on software quality assurance. This is continuation of our topic from the previous lecture. In our lecture 28 we introduced this term of SQA or software quality assurance. ये जिस तरह आपने बड़ा ये term सुनी होगी SQA, तो ये SQA ये शायद मैं आपको शायद बताना भूल गया कि SQA कहाँ से बना. Here S यहाँ से आता है, Q यहाँ से आता है, and A comes from here. So this SQA is called software quality assurance. और हमने in the last lecture, let's have a quick recap कि हमने क्या क्या SQA और quality assurance के बारे में पढ़ा. The first thing that we saw about software quality assurance is we tried to define that what is SQA. ठीक है, we tried to come up कि हमने बताया कि quality एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया, ठीक है, और हम कहें कि जी क्वालिटी इंश्योर अगर आपने किसी प्रोडक्ट की करनी है तो आप डिज़ाइन अच्छा कर लें तो दैट विल इंश्योर दैट द प्रोडक्ट विल बी ऑफ गुड क्वालिटी. ठीक है, ऑब्वियसली इफ़ यू इंश्योर दैट डिज़ाइन इज़ गुड तो प्रोडक्ट विल बी ऑफ गुड क्वालिटी. लेकिन ये नहीं कहता कि अगर आप बाकी चीज़ों में फिर क्वालिटी का बिल्कुल ख्याल ना करें, आप जब टेस्टिंग करें उसमें क्वालिटी का ख्याल ना करें, आप जब इम्प्लीमेंटेशन करें उसमें क्वालिटी का ख्याल ना करें. तो वी सॉ कि SQA इज़ एन अम्ब्रेला एक्टिविटी. It starts, it basically it stays throughout the product development process. Okay. It starts when you go to the customer the first time, and it is there when you're providing support to the customer and throughout the process. ठीक है, आपने requirements गैदर की, आपने डिज़ाइन किया, आपने implement किया, टेस्ट किया, deploy किया, and now you're providing support, तो quality is there. So we said कि SQA is an umbrella activity. And then we defined quality कि what do we mean by quality. ठीक है, एंड वी सॉ कि कोई भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है, जिसके अंदर हमने कहा करेक्टनेस, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है, तो ऑल दीज टर्म्स जिसको हम किसी भी तरह से मेजर कर सकते हैं, दीज आर ऑल डिफाइंड एज क्वालिटी. ओके, एंड देन वी ट्राइड टू डिफाइन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की, जिसके अंदर सेड व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, what do we mean by quality of conformance, what do we mean by software quality assurance, what is SQA planning, okay? What are the quality policies, you know? So we define different terms which are related to quality, okay? And again something that we said okay, all these terms, okay, they are followed by different companies to some extent. Some companies they may be very formal about it, some companies they may not be formal about it, okay? In some companies there might be just words said about them, there is no written document, ठीक है, it's just informal. कुछ companies के अंदर हो सकता है बहुत से formal procedures हो, ठीक है, and when they are formal तो आपकी companies normally आपने सुना होगा that certain company is ISO certified or certain company is CMMI certified, ठीक है, then we have different levels of CMMI. तो the companies who want to be formal about them they follow certain standards. Okay, and then we discussed different then we discussed a very interesting concept कि अगर आप एरर जल्दी पकड़ लें तो उसकी कॉस्ट कम होगी उसको फिक्स करने की, whereas if you find a bug later on at a later stage of product development तो उसकी कॉस्ट उसी हिसाब से बढ़ जाएगी. और उसकी कॉस्ट हमने देखा कि it can increase a lot, ठीक है. जैसे हमने देखा कि अगर रिक्वायरमेंट पे बग्स को फिक्स करने की कॉस्ट ₹1 थी, ठीक है, तो इट कैन गो अप टू 1000 रुपीज़ जब आपने कस्टमर को डिप्लॉय कर दिया, ठीक है. यानी कि इमेजिन करें कि अगर एक बग को फिक्स करने की कॉस्ट ₹1,00,000 है, तो इमेजिन मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000 व्हेन यू एक्चुअली डिप्लॉयड दैट प्रोडक्ट टू कस्टमर, सो दैट वुड बी अ ह्यूज अमाउंट. ओके, एंड देन वी came to the point where we discussed different elements of software quality assurance. उसके हमने देखा कि हम audits that we do, the reviews that we conduct, software testing that we do, ठीक है, different standards that we have, if we have any change management practices, any risk management procedures, okay, any vendor management policies, you know, all those things, they are elements of software quality assurance, ठीक है. All they contribute in ensuring that when you are producing some software that is of good quality, ठीक है. So these are all considered main elements of software quality assurance. Okay ji. Now let's see in today's lecture. Let's see, first of all we'll continue with the where we left off in the last lecture. So we'll see what are the goals of software quality assurance,
एंड वी विल ट्राई टू डिफाइन कि उस गोल के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, हाउ विल मेक श्योर कि यार ये गोल हमने मीट किया कि नहीं किया, एंड देन व्हाट इज द मेट्रिक फॉर दैट, हाउ डू वी मेजर दैट एट्रीब्यूट. ओके, विल सी दैट. ओके जी, सो in terms of requirement, ठीक है, when we are gathering requirements from the customer, ठीक है, तो अच्छी requirements के हमारे attributes क्या क्या होते हैं. सबसे पहले तो हम कहते हैं कि हमारी requirements के अंदर ambiguity नहीं होनी चाहिए, ठीक है, that is one of the attributes of good quality requirements. ठीक है, और ambiguous और non ambiguous पे फ़र्क कैसे हो सकता है. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमने एक चीज़ लिखी हुई है जिसके अंदर हमने कहा हुआ है कि यार दिस द response time of the software should be good or it should be minimal. ठीक है, now that is a very ambiguous statement. ठीक है, because why? Because this is a qualitative statement. ठीक है, you need to quantify requirements. There is no definition of minimal response time, there is no definition of good response time, so we need to come up with some quantity. ठीक है, so that is one attribute which ensures that product or the requirements that you have gathered, they are of good quality. Then the second attribute says that you need to ensure that the requirements that you have gathered are complete. ठीक है, ये आपने कोई चीज़ आधी तो नहीं छोड़ दी. फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, उसके अंदर आपने लिखा हुआ है जी स्टूडेंट नाम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, और यू नो एंड यू हैव एक्चुअली फॉरगॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो द रिक्वायरमेंट्स दे शुड बी कंप्लीट. ठीक, जिस तरह आपने शायद एक क्राइटेरिया नहीं रखा कि ये स्टूडेंट ने ये कोर्स पहले तो नहीं पढ़ा हुआ, वो री रजिस्टर तो नहीं कर रहा. यू नीड टू क्लैरिफाई ऑल दीज थिंग्स. सो द रिक्वायरमेंट्स दे शुड बी कंप्लीट. दिस इज द सेकंड एट्रीब्यूट. द थर्ड एट्रीब्यूट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. The fourth is volatility. The fifth is traceability. The fifth one is model clarity. अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम इनको what are the different metrics that we can use to ensure, क्योंकि अब हमारा कंसर्न क्या है, क्वालिटी. ठीक है, तो अगर हमने रिक्वायरमेंट की हमारी एट्रीब्यूट को हम चेक करें जिसको हम कहते हैं एम्बिग्विटी, तो उसका मेट्रिक क्या है. द मेट्रिक इज नंबर ऑफ एम्बिग्वियस मॉडिफायर्स. फॉर एग्जांपल मैनी, लार्ज, ह्यूमन फ्रेंडली. ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गुड या मिनिमल. ठीक है, तो दीज आर ऑल एम्बिगुअस मॉडिफायर्स. जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर ये वाली टर्म्स आएंगी, मैनी, लार्ज या ह्यूमन फ्रेंडली, तो दीज आर ऑल एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स. ठीक, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स का एक रिव्यू किया. रिव्यू में क्या किया, आपने किसी बंदे को दिया, उसने पढ़ी रिक्वायरमेंट्स और उसने देखा कि यार आपकी 100 रिक्वायरमेंट्स थी जिनमें से 40 के अंदर इस तरह की टर्म्स है. ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है दे आर वेरी एम्बिगुअस. ठीक है, तो हाउ डू वी चेक द whether the requirements are ambiguous or not? We use this metric. ठीक है, you try to look for ambiguous modifiers. ठीक है, then you have completeness. ठीक है, कि how many number of to be done. ठीक है, ओके, तो ये TBAs और TBDs कितने हैं आपके उसके अंदर. ठीक है, to be achieved और to be done. ठीक है, ये बताते हैं कि इतने काम अभी आपने कंप्लीट ही नहीं किए हुए. ठीक है, जो भी वजह थी, फॉर एग्जांपल यू वेंट टू द कस्टमर एंड एंड यूजर वाज नॉट अवेलेबल ऑन पर्टिकुलर डे, तो आपने वहां पे लिख दिया टू बी डन. ठीक, तो यू राइट TBD. सो यू ट्राई टू कैलकुलेट, ये काउंट कि कितनी जगहों पे ये लिखा हुआ है, उससे पता लगेगा कि कितना कंप्लीट है आपका डॉक्यूमेंट. ठीक, देन यू हैव अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी डिफाइंस कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर सेक्शंस और सब सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, उससे आपको, और सब सेक्शन बनाने से क्या फायदा होगा. पहली बात तो अगर आपने सेक्शंस बनाए हैं तो एनीबॉडी हु सीज दैट ही वुड नो कि यार इसने अपनी प्रोडक्ट को बड़ी अच्छी तरह से पार्टीशन किया हुआ है. ही हैज आइडेंटिफाइड कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, एंड दिस फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, दिस फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. दिस वुड गिव अ मायर टू समबडी कि यार ये इसकी अंडरस्टैंडिंग जो अपनी प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज गुड. ठीक है, सो वी आर काउंटिंग कि हाउ मेनी सब सेक्शंस आर देयर, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर. ठीक है, एंड देन यू हैव वॉलेटिलिटी. ठीक है, उसके देयर आर टू मैट्रिक्स कि नंबर ऑफ चेंजेस पर रिक्वायरमेंट. ठीक है, कि आपने जो पहली दफा रिक्वायरमेंट लिखी थी उस पर कितनी दफा चेंजेस की रिक्वेस्ट आ चुकी है, एंड टाइम व्हेन द चेंज इज रिक्वेस्टेड, कि कितनी देर के बाद इसमें चेंज की रिक्वेस्ट आई है. सो दीज आर द टू मेजर्स ऑफ इंश्योरिंग कि आपकी जो वॉलेटिलिटी है, how do the requirements that you have gathered, whether they are volatile or not. ठीक है, and then you have traceable. ठीक है, number of the requirements not traceable to design or code. ठीक है, for example you have written requirements
जिनको कि आप अपने डिजाइन में या कोड में देख नहीं सकते, ठीक है, विच मीन्स कि आपके रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबल ही नहीं है, आपने जो लिखा है दैट इज नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द सिस्टम और यू हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड, यू हैव फॉरगॉट अबाउट इट, ठीक है. सो दिस इज अनदर मेजर of ensuring कि जो requirements that you've gathered they are of good quality. And finally you have your model clarity. How do you ensure model clarity? कि आपने कितने UML models बनाए हैं, ठीक है, and number of descriptive pages per model, number of UML errors, कि आपने errors कितने commit किए हुए, कितने pages के ऊपर हैं ये models और कितने ज़्यादा ये model बनाए हुए. So these are the different metrics of ensuring that the requirements that you have gathered उनके ये attributes follow कर रहे हैं, whether these are the good attributes, these are the attributes which say that the requirements are good, ठीक है. और then we have different metrics of ensuring quality in the requirements, ठीक है. So this is how we ensure that we have quality in the SRS document that we have produced. Similarly, how do we ensure that we have the design that we have made, whether that is of good quality or not? The first thing is architectural integrity, ठीक है. The second thing is component completeness, ठीक है. और इसके लिए जो how do you ensure, what is the metric of architecture integrity? Number one is existence of architecture model. पहली बात तो ये कि you should have architecture model of your product, ठीक है. If you do not have that, तो उससे ये पता लगेगा कि पहली बात तो ये कि आपको यही clarity नहीं है कि आपके main subsystems कौन से हैं, ठीक है. And then the number of components they should trace to the architecture model. ये component completeness किससे इंश्योर होती कि जो आपने कंपोनेंट बनाए दे शुड ट्रेस बैक टू द आर्किटेक्चर मॉडल, ठीक है. और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसीजरल डिजाइन दैट इज एन अदर मैट्रिक दैट इज और कैन बी यूज्ड फॉर कंपोनेंट कंप्लीटनेस. क्योंकि अगर देखें हमारा डिजाइन प्रिंसिपल था, इफ यू गाइस रिमेंबर फ्रॉम डिजाइन लेक्चर्स, इट वाज कि द कंपोनेंट्स और द इंडिविजुअल मॉड्यूल दे शुड बी कोहेसिव, दे शुड बी लो कपलिंग, ठीक है. तो अगर आपकी कंपोनेंट्स के दरमियान बहुत ज्यादा द लिंक्स बिटवीन द कंपोनेंट देयर टू मेनी, तो यू वुड नो कि यार डिजाइन इज ऑफ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. ओके जी. एंड देन यू हैव दिस इंटरफेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है. उसका आपके पास क्या है, व्हाट इज द मेट्रिक देयर? यू हैव योर मेट्रिक इज लेआउट अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है. एंड देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ गेजिंग कि आपकी लेआउट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फील्ड्स के देख लें कि इफ यू हैव अ टेबल और इफ यू हैव अ फॉर्म, तो जो फॉर्म के अलाइन है प्रॉपर्ली का नहीं है, कितनी एंट्रीज हैं जो कि दे आर नॉट अलाइंड, ठीक है, विच वुड से कि आपकी लेआउट अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है. देन यू हैव पैटर्न्स कि इफ यू आर फॉलोइंग सर्टेन डिजाइन पैटर्न्स, हाउ मेनी पैटर्न्स यू हैव यूज्ड, क्योंकि पैटर्न्स इंश्योर कि योर डिजाइन वुड बी गुड. क्योंकि पैटर्न्स क्या है कि पैटर्न्स आर दोज प्रैक्टिसेस विच आर एप्लीकेबल टू सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो उनको हमने पैटर्न्स बना दिए. तो अगर आपने कोई पैटर्न यूज किया तो इट वुड इंश्योर कि जो आप प्रोडक्ट उस पैटर्न के ऊपर बनाएंगे दैट विल बी ऑफ गुड क्वालिटी. ओके जी. एंड देन we can have different attributes similar to design and requirement. We have different attributes for code और उसके भी हमारे पास different matrix हैं. And what are these? Code quality के हमारे attributes क्या हैं? Complexity, ठीक है, maintainability, understandability, reusability and documentation, ठीक है. So these are the attributes which define that whether the quality of your code is good or bad. And what are the matrix that are used? आपकी जो code की complexity का attribute है, that is very simple. We calculate the cyclomatic complexity, ठीक है. हम देखते हैं कि हमारे कोड के what is the order of complexity of our code, ठीक है. जिस अगर एक फॉर्मूले में हम कह देते हैं बहुत सिंपल सा फंक्शन है, एक फॉर्मूले पे हम कहते हैं order and complexity. So we can calculate the cyclomatic complexity of the code which would give us a gauge कि हमारा कोड कितनी अच्छी क्वालिटी का है. Similarly maintainability, ठीक है, and understandability कि आपने अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसे आपको देख सकते हैं. यू कैन से कि कितने परसेंट इंटरनल कमेंट्स थे, ठीक है. एंड वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन वेदर आपने फॉलो किए हैं कि नहीं किए, ठीक है. अगर आपने फॉलो किए हैं तो योर कोड वुड बी अंडरस्टैंडेबल. अगर आपकी कंपनी का एक सर्टेन स्टैंडर्ड था जो कि बताता था यार कि दिस इज अ पब्लिक वेरिएबल, दिस इज अ प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है. यहाँ बताता था कि आपके हर वेरिएबल के नाम के अंदर उस क्लास का नाम आता था, शायद एप्लीकेशन में पूरे प्रोजेक्ट का नाम आता था. तो कोई और बंदा जो उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है ना, द डेवलपर, व्हेन ही सीज योर कोड ही वुड बी easily able to relate कि जी अच्छा इसका ये मतलब है. ओके, सो दैट वुड मीन योर कोड इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है. तो यू कैन कैलकुलेट कि अगर आपने 1000 लाइनें लिखी हैं उसमें से 50 लाइनें कमेंट किया तो यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कमेंट्स, ठीक है. इसी तरह रीयूजेबिलिटी के परसेंट रीयूज्ड कंपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल आपने 10 क्लासें यूज की, उसमें से 3 आपने पुरानी ले ली, तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट कि कितनी रीयूजेबिलिटी हो रही है आपके कोड के अंदर. सिमिलरली डॉक्यूमेंटेशन, यू कैन हैव द रीडेबिलिटी इंडेक्स. Okay ji. And then finally you can, another goal of quality assurance is
क्वालिटी कंट्रोल इफेक्टिवनेस, ठीक है, कि हमने ये जो क्वालिटी कंट्रोल की उसकी इफेक्टिवनेस के क्या एट्रीब्यूट्स है, रिसोर्स एलोकेशन, कंप्लीशन रेट एंड रिव्यू इफेक्टिवनेस एंड टेस्टिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है। उसके अंदर रिसोर्स एलोकेशन का क्या है, स्टाफ आर परसेंटेज पर एक्टिविटी, कि आपके कितने रिसोर्सेज कितनी देर के लिए एक्टिव थे, ठीक है, बिकॉज आइडियली वी वांट टू ऑप्टिमली यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज। और इसकी क्या डेफिनेशन है कि आपका कोई भी बंदा किसी भी वक्त फारिग भी नहीं बैठा हुआ और कोई भी बंदा ओवरबर्डन नहीं है। मतलब इन अ वेरी बैड सिचुएशन कुछ एम्प्लॉइज आपकी कंपनी के बहुत बेचारे ज्यादा काम कर रहे होंगे, सम ऑफ देम दे वुड बी सिटिंग फ्री, यू डू नॉट वांट दैट, ठीक है। सिमिलरली कंप्लीशन रेट क्या है कि एक्चुअल वर्सेस बजटेड कंप्लीशन टाइम, दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। आप अपने पुराने पास्ट प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं कि आपने एक्चुअल उसकी कंप्लीशन रेट क्या दी थी और एक्चुअली आपने कस्टमर को डिलीवर कब किए हैं वो प्रोजेक्ट्स, तो दिस वुड गिव यू अ कंप्लीशन रेट कि आप कितनी जल्दी अपना प्रोडक्ट कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली यू कैन हैव रिव्यू इफेक्टिवनेस, और उसके अंदर डिफरेंट रिव्यू मैट्रिक्स हैं जो कि आप यूज करते हैं, जो कि हमने अभी पीछे भी देखे कि आपने एक रिव्यू किया, उससे प्रोडक्ट आप लोगों ने चेंजेस को किया, आपने जो गलती आइडेंटिफाई की लोगों ने वो सही की कि नहीं की, सो यू कैन कैलकुलेट द रिव्यू इफेक्टिवनेस। सिमिलरली यू हैव योर टेस्टिंग इफेक्टिवनेस, ये जो आपने पूरा टेस्टिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम बग्स निकालते हैं, उन्हें फिक्स करते हैं। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट प्रोसेस कि नंबर ऑफ एरर फाउंड, एंड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट कि कितने एरर्स निकले थे और कितने क्रिटिकल थे उनमें से एरर्स, एंड देन यू कैन एफर्ट रिक्वायर्ड टू करेक्ट एन एरर एंड ओरिजिन ऑफ एरर कि किस बंदे ने वो एरर निकाला था। तो दीज आर द मेन गोल्स। हमने देखा 4 गोल है, यू हैव योर रिक्वायरमेंट क्वालिटी, यू हैव योर डिजाइन क्वालिटी, यू हैव योर कोड क्वालिटी एंड फाइनली यू हैव योर क्वालिटी कंट्रोल इफेक्टिवनेस। और हमने कहा कि हर एक गोल के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एंड देन वी हैव आल्सो आइडेंटिफाइड द मैट्रिक्स दैट कैन बी यूज्ड टू गेज के ये वाले एट्रीब्यूट आपका किस हद तक whether you met it or not, ठीक है जी। okay so the next thing that we do, so next up is SQA plan, software quality assurance plan. So what are the different things that are part of SQA plan? Number one is the management section, ठीक है, it describes the place of SQA in the structure of the organization, ठीक है, it is basically for the management. It tells कि how important is quality, what is the importance of quality assurance in this particular company. And then you have this documentation section which actually describes each work product produced as part of the software process. कि आपके डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर आप बताते हैं कि जी हम SRS बनाएंगे, ठीक है, हम पहले स्कोप लिखेंगे, SRS बनाएंगे, फिर हम STS बनाएंगे, ठीक है, फिर हम अपने प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे जिसके अंदर हम उसका मैनुअल बनाएंगे। तो इन द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन यू बेसिकली राइट एवरीथिंग दैट यू विल राइट अबाउट द प्रोडक्ट। And then another thing that is part of SQA plan are the standards, practices and convention section, ठीक है, जिसमें list all the applicable standards, practices applied during the software process and any metrics to be collected as part of the software engineering work, ठीक है। यानी कि जिस तरह हमने कहा था कि आपके कोडिंग की कुछ practices हैं, you have some conventions, whatever there is, if you are following anything like that, so you need to mention that is part of SQA plan, ठीक है। Then you have a review and audit section, which what does this section do? It provides an overview of the approach used in the reviews and audits to be conducted during the project, ठीक है, यानी कि आपने क्या किस तरह से पहली बात है रिव्यू करने और how they will be conducted, you actually write that in this section. Then you have this test section, रेफरेंसेस द टेस्ट प्लान। अगर आपको याद हो कि हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर एक स्टेज थी हम कहते थे एनालिसिस एंड प्लान, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्लान बनाते थे, तो इट रेफरेंस टू दैट टेस्ट प्लान एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट एंड डिफाइंस टेस्ट रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट। देन यू हैव प्रॉब्लम रिपोर्टिंग एंड करेक्टिव एक्शन सेक्शन। इट डिफाइंस द प्रोसीजर्स फॉर रिपोर्टिंग। पहली बात तो ये है कि जब आपने एरर निकाला है उसको आपने रिपोर्ट कैसे करना है, उसको ट्रैक कैसे करना है, एंड रिजॉल्विंग एरर्स और डिफेक्ट्स, identifies organizational responsibilities for these activities, and then finally you can have another section जिसके अंदर if you're using certain tools, if you have specific SQA methods, if you have change control procedures, record keeping, training, you can have all these things. तो हमारे SQA plan का, if you are a company and you want to make an SQA plan, then the things that you should have in that plan, number one is you want to have a section which says okay, what is the importance of SQA in your company, okay, you want to establish that. Then you should have a section कि whenever you make a project, what are the different documents that you will produce for that, ठीक है जी। And then if you have certain standards, certain practices and the conventions that you follow,
in producing any kind of work product, so you need to mention that in this particular section. And then you have a section on reviews and audits कि आप कितने reviews conduct करेंगे, किस टाइम पे conduct करेंगे और कैसे conduct करेंगे, तो you have a separate section for that. Then you have a test section, then you have a problem reporting and corrective कि आपने कितने errors निकालेंगे तो उनको report कैसे करेंगे, track कैसे करेंगे और resolve कैसे करेंगे. So you need to have all these procedures written in the SQA plan. Okay, so next up is we have statistical SQA. I mean, it's good talking about quality, lekin quality again, it's a subjective term. Okay, and if I say something should be of good quality, now there is no definition of good quality. Okay, so we need some numbers to associate or to tell what is good and what is bad in it. Okay, so that is where statistical SQA comes in, that we perform some calculations and we come up with some numbers which actually tell us okay, a certain work product, whether that is of good quality or whether that is of bad quality. Okay, so what is in statistical SQA? Number one is the information about software defects is collected and categorized. Okay, for example, हमने कहा जी कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर इतने severe defects हैं, इतने minor criticality के defects हैं, so हमें इसकी बेसिस के ऊपर हमने निकाल लिया कि यार ये वो bugs निकले जो उसके बगैर हमारी प्रोडक्ट यार बड़ी खराब होती. तो ये वो bugs हैं जिनसे we should fix them, लेकिन ये इतने critical नहीं है. तो when we say कि we are calculating statistics, so we come up with these kind of numbers. Then an attempt is made to trace each defect to its underlying cause, isolate the vital few causes of the major sources of all errors. यानी कि फिर हम इसके अंदर we try to figure out कि यार ये जो errors आते हैं, what is the reason of these errors, ठीक है. Then move to correct the problems that have caused that defect, and we try to, क्योंकि quality assurance का मकसद क्या है, देखिए टेस्टिंग का मकसद क्या है कि बग मिला उसको फिक्स किया, दैट इज द पर्पस ऑफ टेस्टिंग, ठीक. लेकिन जो क्वालिटी का मकसद ये है कि बग मिला आपने फिक्स किया, देन यू वांट टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ दैट बग एट द फर्स्ट प्लेस कि ये बग आया क्यों था, एंड यू वांट टू हैव प्रैक्टिसेस इन प्लेस कि नेक्स्ट टाइम वो चीज ना हो. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ओके जी, सो फॉर एग्जांपल when we say कि we are calculating these statistics, we are calculating कि what are the different categories of errors, तो उसके अंदर these are the main categories, जिसके अंदर मैंने कह दिया जी incomplete और erroneous specification. आपके कुछ errors आ सकते हैं अगर आपकी जो requirement gathering है if that is incomplete, कुछ errors उसकी वजह से आ सकते हैं, तो उनको हमने ये नाम दे दिया IES का. इस तरह misinterpretation of customer communication, हमने कह दिया कि कस्टमर ने शायद कोई चीज प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं की तो उसकी वजह से बग आ गया. थर्ड हमने कह दिया इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफिकेशन, कि डेवलपर ने अपनी मर्जी से रिक्वायरमेंट्स पे एक चीज लिखी हुई थी, उसने अपनी मर्जी से कोई काम कर दिया, दैट इज इंटेंशनल डेविएशन. देन वी हैव वायलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स. एक और तरह का बग क्या है कि आपने जो स्टैंडर्ड्स थे, जो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस थे, जो कमेंट के आपने देने के स्टैंडर्ड्स थे, उनको आपने फॉलो नहीं किया अपनी कंपनी की, तो दैट इज वायलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स. Then you have an error in data representation. ठीक है, for example, you were supposed to generate some reports and the way you were supposed to represent certain kind of data, you have not followed it. Then you have inconsistent module interface. Okay, the interfaces that you have cross different modules, that is not consistent. एक जगह पे एक तरह का है, दूसरी जगह पे एक तरह का है, तो again that is another kind of a bug or error. Then error in design logic. Then you have incomplete or erroneous testing, कि आपने टेस्टिंग की एक्चुअली कंप्लीट नहीं की और डिफरेंट तरह के इनकंसिस्टेंट आउटपुट्स आ रही हैं, तो अगेन दैट इज अदर काइंड ऑफ एन एरर. देन यू हैव इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन. द एसआरएस दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड इट इज नॉट कंप्लीट, ठीक है. द डिजाइन डॉक्यूमेंट दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड इट इज नॉट कंप्लीट. द यूजर मैनुअल दैट यू हैव मेड इट इज नॉट कंप्लीट. So these are all examples of inaccurate or incomplete documentation. Then you have error in programming language translation. Then you have ambiguous or inconsistent human-computer interaction. ठीक है, again it is related with user interface. कि your user interfaces they are not consistent. Then any other kind of an error we have made a separate category, जिसमें कह दिया miscellaneous उसके अंदर डाल दिए. अच्छा जी, अब इन जितने भी तरह के हमने errors देखे हैं, these are the different kinds of errors that can occur in your software product that you have produced. The most often जो हमारा पहली कैटेगरी थी incomplete और erroneous specification, ये वाला, ठीक है. एंड द सेकेंड वन मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमर कम्युनिकेशन, और उसके बाद एरर इन डाटा रिप्रेजेंटेशन आर द वाइटल फ्यू कॉजेस फॉर मेजॉरिटी ऑफ एरर्स. देखिए हमने कहा था कि
क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या है कि कॉज क्या है उस एरर का, ठीक है। तो हमने कहा कि जो आपके जो मेजॉरिटी ऑफ एरर्स आते हैं उनके कॉजेज जो है, दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ डिफरेंट एरर्स। तो ये 3 मेन कॉजेज होते हैं आपके जितने भी एरर्स के आते हैं। सबसे बड़ा तो शायद होता है कि रिक्वायरमेंट्स जो आपने ली थी वो इनकम्प्लीट या एम्बिगुअस थी। फिर था कि कस्टमर ने शायद कम्युनिकेशन के अंदर कोई चीज़ मिस कर दी, और आपने जो डाटा रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर कोई एरर कर दिया। तो दीज आर द मेजर कॉजेज, ठीक है, और द वाइटल फ्यू कॉजेज फॉर द मेजॉरिटी ऑफ एरर्स दैट कैन ऑकर इन योर प्रोडक्ट। ओके जी, तो इसका फायदा क्या होता है, ठीक है। अब अगर आप देखें कि ये हमारे डिफरेंट हमने एरर्स के स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किए हुए, ठीक है। इफ व्हाट दिस टेबल रिप्रेजेंट्स इज कि लेट्स से ये हमारे वो सारे एरर्स के कॉजेज जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखे हैं। फिर हमने कहा कि जो 205 एरर हमने ढूंढे हैं वो इनकम्प्लीट और एरोनियस स्पेसिफिकेशन की वजह से आए। फिर कस्टमर की मिसकम्युनिकेशन की वजह से 156 एरर आए, एंड देन आपकी डाटा रिप्रेजेंटेशन के में एरर की वजह से कितने आपके आए एरर, 130, ठीक है। यानी कि द 22% ऑफ द एरर्स आर बिकॉज यू कमिट बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट और एरोनियस स्पेसिफिकेशन, ठीक है जी। और उसमें से अगर आप अपने सीरियस एरर्स की परसेंटेज निकालें तो 27% ऑफ द सीरियस एरर्स, ठीक है, दे वर कॉज्ड बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन। सो वी नो कि रिक्वायरमेंट्स की कंप्लीटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, अनएम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स कितनी जरूरी होती हैं, ठीक है। सिमिलरली जो मॉडरेट के अंदर अगर आप देखें तो 18% ऑफ मॉडरेट एरर्स दे वर कॉज्ड बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट और एरोनियस स्पेसिफिकेशन। तो देखिए इस तरह के नाउ दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, दे एक्चुअली टेल अस कि कॉजेज क्या हैं, ठीक है, और नाउ वी कैन टारगेट दोज एरियाज, वी कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स, वी कैन ट्राई टू इंप्रूव दोज थिंग्स टू मेक श्योर कि हमारी अब वो गलतियां ना हो। ओके जी, ओके, देन फर्दर वी कैन ऑल्सो डू सम मोर कैलकुलेशंस, ठीक है। और हम कैलकुलेशंस क्या कर सकते हैं कि वी कैन कंप्यूट एरर इंडेक्स, ठीक है, वी कैन कंप्यूट एरर इंडेक्स फॉर डिफरेंट स्टेजेस। फॉर एग्जांपल हमने पहली बिल्ड बनाई, उसका हमने एक इंडेक्स निकाल लिया, दूसरी बिल्ड बनाई, उसका इंडेक्स निकाल लिया। हर स्टेज पे जब हमने इंडेक्स निकालेंगे हमें पता लगेगा कि हम जो गलतियां पहले कर रहे थे उनको इंप्रूव कर रहे हैं या हमारा एरर इंडेक्स इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो थ्रू दीज डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ठीक है, वी कैन गेज द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस। हम देख सकते हैं कि हमारी कंपनी क्वालिटी को एश्योर कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो हाउ डू वी कंप्यूट दिस एरर इंडेक्स, ठीक है। एरर इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा जी हम फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, जैसा मैंने कहा हमारी डिफरेंट बिल्ड्स हैं, तो वी हैव द फेज इंडेक्स। हाउ डू वी कैलकुलेट इट, हमने कह दिया जी हमने हर एरर को एक वेट दे दिया, ठीक है। जिस तरह WS स्टैंड्स फॉर द सीरियस एरर्स का वेट कितना है, और मीडियम एरर्स का वेट कितना है, और ट्रिवियल एरर्स का वेट कितना है। तो द रिकमेंडेड वैल्यूज आर के जो आप WS के लिए यूज 10, फॉर द एरर्स विच आर ऑफ मॉडरेट नेचर उनके लिए 3, और ट्रिवियल एरर्स के लिए 1 का वेट यूज करें। सो दीज आर द वेट्स दैट आर यूज्ड। ओके, देन वी हैव, फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि जो EI है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एरर्स अनकवर्ड, देन द नंबर ऑफ सीरियस एरर्स अनकवर्ड इज SI, और MI इज द नंबर ऑफ मॉडरेट एरर्स, TI इज द नंबर ऑफ ट्रिवियल एरर्स। तो हम कर क्या रहे हैं कि वी आर डिवाइडिंग द सीरियस एरर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एरर्स इन अ पर्टिकुलर फेज एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द वेट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल कैलकुलेट अ फेज इंडेक्स, ठीक है। अब फेज इंडेक्स तो हमने निकाल लिया, देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंट फेज इंडेक्सेस और फेज इंडेक्सेस वी कैन कैलकुलेट द एरर इंडेक्स, ठीक है, विच इज एन ओवरऑल इंडिकेशन ऑफ इंप्रूवमेंट इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है। और हाउ वी कैलकुलेट दैट, यू बेसिकली सम, फॉर एग्जाम्पल आपकी पहली फेज है तो यू डू P1, एंड देन इफ योर सेकंड फेज को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू मल्टीप्लाई द थर्ड फेज बाय 3 एंड सो फोर्थ एंड डिवाइडेड बाय the size of the product. Okay जी, so example of this is, for example हमने कहा कि जी हमारे टोटल एरर निकले हैं 100, ठीक है। उसमें से हमने कह दिया कि जी 50 एरर्स जो थे दे आर सीरियस, यहाँ हमने कहा कि जी 20 सीरियस एरर्स थे, 30 मॉडरेट थे, और 50 जो थे वो ट्रिवियल एरर्स थे, ठीक है। ये हमारी वो 3 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने जब निकालना है अपना फेज इंडेक्स, ये हमने कह दिया जी हम एक ही फेज की कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं, तो फेज 1 की हम कैसे करेंगे, हमारा वेट एस क्या है, वेट ऑफ सीरियस एरर्स इज 10, वी मल्टीप्लाई दिस बाय
पहली बात तो हमारे 20 है सीरियस एरर्स और टोटल कितने हैं 100, ठीक है. एंड देन वी ऐड, वी मल्टीप्लाई, दिस इज द वेट फॉर मॉडरेट एरर्स. और फिर हमने क्या किया, हमने टोटल नंबर ऑफ मॉडरेट एरर्स आर 30 एंड टोटल नंबर ऑफ एरर्स इन दिस फेज आर 100. सिमिलरली हमारा वेट ऑफ ट्रिवियल एरर्स क्या है 1 एंड देन टोटल नंबर्स ऑफ ट्रिवियल एरर्स 50 एंड देन वी डिवाइड बाय इस तरह से. ओके जी, सो let's make sure that we have written the right equation which we have. So on the basis of this we can calculate कि हमारा इस phase index का what is the phase index, ठीक है, and what would that be. You know, you can do a simple calculation. इसके अंदर आपका आ जाएगा 2 and then you can have 0.9 plus 0.2, ठीक है. When you add them up it would be 3.1. So this is the phase index. Okay. Similarly, you can calculate the phase index for different phases and then you can calculate the overall error index. So this is an other measure or this gives us an other statistic through which we can gauge कि हमारा quality assurance का process improve हो रहा है or whether it's actually getting worse. Okay जी. Then another technique that is used or that uses statistical software quality assurance is Six Sigma. ठीक है. What do we do in Six Sigma? This is one of the most widely used strategies of software quality assurance, and there are 3 core steps. जब भी हम कहते हैं कि Six Sigma is followed, तो there are 3 core steps. फिर आपके कुछ additional steps भी होते हैं. और जो हमारे 3 core steps हैं, what they are? Number 1 is कि define customer requirements, deliverables and project goals via well-defined methods of customer communication. ठीक है, कि you have defined customer requirements, deliverables and project goals. ठीक है. Measure the existing process and its output to determine quality. Analyze defect matrix and determine the vital few causes. Okay जी, आपने पहले में क्या किया? You have measured the existing process and its output to determine quality. Second one is कि you have analyzed the defect matrix and determine the vital few causes. अच्छा, if an existing software process is in place but improvement is required, Six Sigma suggests, यानी कि अगर आपके पहले ही एक सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक एग्जिस्ट करता है and you need an improvement, so what are the additional activities? You improve the process by eliminating the root causes of defects. यानी कि जो हमारे वो एरर के कॉजेज थे, we will see कि हमारे पुराने प्रोजेक्ट में जो हमने कंप्लीट किया उसमें क्या मेन कॉजेज थे. ठीक है, हम आइडेंटिफाइड करेंगे उन वाइटल फ्यू कॉजेज को, हम कहेंगे यार इन कॉजेज को रिमूव कर लो तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी. सेकंड क्या सजेशन है कि कंट्रोल द प्रोसेस टू इंश्योर द फ्यूचर वर्क डज नॉट री इंट्रोड्यूस द कॉजेज ऑफ डिफेक्ट्स. दिस इज बेसिकली कॉजेज, कि आप जो दोबारा चीजें बना रहे हैं, यू मेक श्योर कि द डिफेक्ट, द कॉजेज ऑफ द डिफेक्ट दे आर नॉट द सेम अगेन. ठीक है, तो देयर आर 2 इंप्रूवमेंट्स आर सजेस्टेड अगर आपका पहले ही कोई प्रोसेस इज इन प्लेस. लेकिन इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, द कोर स्टेप्स दे आर ऑगमेंटेड बाय दीज स्टेप्स. यानी कि अगर तो एग्जिस्ट करता है और उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए तो हमने देखे, लेकिन अगर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो जो आपके कोर स्टेप्स के अंदर व्हाट आर द एडिशंस, कि यू डिजाइन द प्रोसेस. सबसे पहले आपने डिजाइन किया प्रोसेस टू अवॉइड द रूट कॉजेस ऑफ डिफेक्ट्स एंड टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. यानी कि अब आपके, क्योंकि आप एक नई चीज डिजाइन करने जा रहे हैं, तो यू मेक श्योर कि आपके वो रूट कॉजेज ना आए. ठीक है, और आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स भी मीट हो. देन वेरीफाई दैट द प्रोसेस मॉडल विल इन फैक्ट अवॉइड डिफेक्ट्स एंड मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. देन यू नीड टू वेरीफाई, you need to basically make sure कि यार आपने ये मॉडल तो बना दिया है, लेकिन how this will ensure कि the causes they do not occur and the product that you are make following that process will meet the customer requirements or not. Okay, so these are the things that we do in Six Sigma. So there are 3 core steps and then you have some additional steps. अगर तो आपको कोई process है, you want to improve it, तो आपके additional steps हैं जिसके अंदर पहले के अंदर हम क्या करते हैं कि आप you improve the process by eliminating the root causes, and the second step is कि you try to control the process कि दोबारा वो causes की वजह से आपके defects ना आए. And the second is कि आपने नए सिरे से पूरा process ही बनाना है, तो उसके अंदर आप process ऐसा बनाते हैं कि वो causes ना आए और आप customer की requirements को meet करें. And the second is then you need to verify कि वो process काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा. ठीक है, so this is what we do in Six Sigma, and this is very brief. Let me just say it कि this is very brief description of Six Sigma.
You can find lots of information about Six Sigma on the web, and this is kind of out of scope of this course because here we are just trying to introduce different concepts of quality assurance. I mean, there can be whole courses on software quality assurance where Six Sigma topic will be covered in huge detail. But here, the goal was just to introduce that this is another thing that is used to improve quality or to ensure quality, and this is one of the most used strategy of statistical SQA, Six Sigma. Okay, ji. Now I told you about the reviews, that we do conduct reviews, and what is the purpose of these reviews? The reviews are used to uncover errors and defects. ठीक है? They are just used to uncover. Fixing की बात नहीं हो रही, सिर्फ हम review के अंदर errors को ढूंढते हैं. ठीक है? तो what do the reviews do? Number one, they uncover errors in function, logic or implementation for any representation of the software. एनी से यहाँ पे क्या मतलब है कि रिक्वायरमेंट्स की फॉर्म में भी है, डिजाइन की फॉर्म में भी है, कोड की फॉर्म में भी है, या टेस्ट केसेस की फॉर्म में भी है. तो एनीथिंग दैट इज रिटन अबाउट द सॉफ्टवेयर, उसके अंदर से हम एरर्स निकालते हैं टू वेरीफाई दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट्स. अगेन यू कैन हैव रिव्यूज फॉर दैट टू एंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन मीट्स प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, जिसका हमने जिक्र किया कि SRS का एक सर्टेन स्टैंडर्ड है, SDS का एक सर्टेन स्टैंडर्ड है, कोडिंग का एक सर्टेन स्टैंडर्ड है. तो आप रिव्यू इसलिए भी करते हैं to achieve software development in a uniform manner to make projects more manageable. So these are the different goals of conducting these reviews. Okay जी, now what are the different roles in the review? कौन कौन बंदे शामिल होते हैं जब आप रिव्यूज करते हैं? सबसे पहला तो हम कहते हैं एक प्रेजेंटर होता है, ठीक है, or the designer who actually produces this review. Then you have a coordinator, ठीक है, और coordinator is just somebody who will just conduct that review meeting. ठीक है, यानी कि he would have the reviewer in it, जिसको हमने प्रेजेंटर कहा, and he will have the person in it जो कि जिनका क्या आप रिव्यू कर रहे हैं, जिनके वर्क प्रोडक्ट का आप रिव्यू कर रहे हैं. You never review people, you always review their work. ठीक है, and then you can have recorders. ठीक है, recorders क्या करते हैं? They records the events of meeting and build paper trail. जिस तरह मीटिंग मिनट्स वगैरह हो गए तो they do that. Then you have reviewers, जिसके अंदर मेंटेनेंस ऑरेकल, स्टैंडर्ड बियरर, यूजर रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स. सो दे आर ऑल पार्ट ऑफ रिव्यूअर्स के अंदर ये सारे लोग हो सकते हैं. ओके जी, तो ये जो आपका प्रेजेंटर होगा, ही माइट बी द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर. देन यू हैव द कोऑर्डिनेटर, जो कि हमने कहा है कि ही वुड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आस्किंग द मैनेजर टू कंडक्ट द रिव्यू, एंड जो रिव्यू जिनका होना है उनको भी शामिल करने वाला, यू नो, ही इज बेसिकली दैट पर्सन. और आपके रिकॉर्डर होते हैं जो मीटिंग मिनट्स लेते हैं, एंड देन यू हैव रिव्यूअर्स. ओके जी, now I told you about that there are two kinds of reviews. एक होते हैं आपके formal technical reviews. What are they? Number one, it involves 3 to 5 people including reviewers. ठीक है, तो when we say कि आपका formal technical reviewer है, तो the number of people that are part of it, it's 3 to 5. इसके अंदर reviewers भी शामिल है. Advanced preparation, you basically plan for them कि आपने इस डेट को ये review करना है, ठीक है, and no more than 2 hours per person required. ठीक है, यानी कि 2 घंटे से ज्यादा इस पे ह्यूमन एफर्ट एक बंदे की नहीं लगती. एंड ड्यूरेशन ऑफ रिव्यू मीटिंग शुड बी लेस देन 2 hours. एंड देन फाइनली व्हेन यू हैव दैट रिव्यू मीटिंग, उसकी ड्यूरेशन भी 2 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. द फोकस ऑफ रिव्यू इज ऑन द डिस्क्रीट वर्क प्रोडक्ट. ठीक है, यानी कि व्हेनेवर यू आर कंडक्टिंग अ रिव्यू, तो देयर इज अ वर्क प्रोडक्ट दैट इज बीइंग अंडर रिव्यू इन दैट केस. ठीक है, and the review leaders, they organize the review meeting at the producer's request. For example, I am the person who has written a piece of code, or I am the person who has written SRS, so I will request कि जी I want a review to be conducted of my work product. ठीक है जी, तो reviewers, अब अगर रिव्यू लीडर से मैंने कहा, रिव्यू लीडर कैन बी द एसक्यू मैनेजर. ठीक है, अब एसक्यू मैनेजर ने आगे रिव्यूअर्स असाइन कर दिए, उसने 4 बंदे कंपनी के आइडेंटिफाई किए जो मेरी वर्क प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे. तो रिव्यूअर्स आस्क क्वेश्चंस दैट इनेबल द प्रोड्यूसर टू डिस्कवर हिज और हर ओन एरर्स. ठीक है, और अगेन दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. The product is under review, not the producer. This is very important. कि whenever you conduct a review, or if you are a reviewer, then make sure that the person whose work product is being reviewed, he knows that he's basically in an environment, you make him so comfortable that he knows that he is not reviewed, his work is reviewed. Okay? This is very important to establish. So the producer of the work product walks the reviewers through the product. अब मैंने अगर SRS लिखी है, तो मेरे जो भी बंदे मेरे साथ बैठे हुए, मैं उनको एक एक पेज से लेके जाऊंगा, मैं कहूँगा अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ मैंने ऐसे की है, ये ऐसे की है, उनको पता लगता जा रहा है मैंने कैसे किया. Now if the reviewers, if they have questions, they will ask me, and then things will become clear. अच्छा, the recorder writes down any significant issues raised during the review. ठीक है, अब जो बंदा मीटिंग मिनट्स लिख रहा है,
ही इज बेसिकली रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. अगर रिव्यूअर्स ने कोई चीज़ क्वेश्चन किया है और जो प्रोड्यूसर है उसने आंसर नहीं किया, या इफ देयर इज एन इशू और समथिंग लाइक दैट, ही इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. तो यू हैव बेसिकली रिकॉर्ड के इस मीटिंग में हुआ क्या, कितने बग्स निकले, यू नो, सो यू हैव अ प्रोसीजर हियर. तो रिव्यूअर्स डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द वर्क प्रोडक्ट एंड वेदर टू रिक्वायर एडिशनल रिव्यूज ऑफ द प्रोडक्ट और नॉट. अब जो बंदे रिव्यू के लिए वहां बैठे हुए थे, दे वुड डिसाइड कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल और दे विल रिकमेंड सम चेंजेस. और उस चेंजेस के अंदर भी दे विल रिकमेंड कि जब आप चेंज करेंगे आइदर आप इसको ऐसे ही इट्स ओके और यू अगेन नीड टू कंडक्ट अ रिव्यू. सो दे आर द पीपल हु विल बी हु आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दैट काइंड ऑफ डिसीजन. ओके जी, एंड देन बिकॉज इट्स अ फॉर्मल रिव्यू, तो फॉर्मेलिटी एंड टाइमिंग. Number one is formal review presentations. It resembles a conference presentation. ठीक है. And then informal presentation, they are less detailed but accurate and correct. ठीक है जी. Early जो आपके, अच्छा एक चीज़, this is the difference between formal and informal reviews. Formal reviews की पहली बात तो ये there are presentations like conference presentation, whereas informal के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती. They tend to be very small. और again आपकी प्रोडक्ट के जो अर्ली स्टेज के ऊपर रिव्यूज होते हैं, दे टेंड टू बी इनफॉर्मल. ठीक है, क्योंकि उस वक्त चीज़ें इतनी नहीं बनी होती, तो यू नॉर्मली गो थ्रू एंड सी के यार लोग क्या काम कर रहे हैं, तो यू रिव्यू देयर वर्क, लेकिन देयर इज नो वर्क प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस एट द अर्ली स्टेजेस. तो अर्ली स्टेजेस के ऊपर जितने भी रिव्यू होते हैं, दे टेंड टू बी इनफॉर्मल. ठीक है. एंड एट द लेटर स्टेजेस दे टेंड टू बी मोर फॉर्मल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने रिक्वायरमेंट भी लिख ली, एसडीएस भी बना लिया, कोड कर रहे हैं, तो एट दैट स्टेज द रिव्यूज दे बिकम मोर फॉर्मल. ओके जी. और नॉर्मली हमारे ये रिव्यूज कब कब होते हैं? एक आपका रिव्यू होगा जो फॉर्मल रिव्यूज है, जब आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया, देन एट द कंप्लीशन ऑफ डिजाइन. ठीक है. एंड व्हेन यू मेक द फर्स्ट बिल्ड, these are the different stages when you will conduct these reviews. ठीक है. After the first test run, after all the test run. ठीक. And anytime you complete an activity that produce a complete work product, you will conclude a formal technical review. ठीक है. So this is how you conduct formal technical reviews, and this is what they do, and we have seen the guidelines. Okay. How many people are involved, and what do you need to ensure when you conduct a review. Again, we'll just quickly go through what are the general guidelines for conducting these reviews. Number one, review the product, not the producer. I've already told you that this is very important. You need to make sure that the producer knows that you're not actually reviewing him, or you need to conduct review in an environment where he knows that you're actually reviewing the work product. And then set an agenda and maintain it. So you need to set an agenda at the beginning. Okay, this review is for this and this reason, and maintain it till the end. And limit the debate. You're not in a debating contest. Okay, where you are basically, you get in a debate and you make an issue out of a small thing with the producer. So you just be to the point and tell the problem and move on. Okay, then initiate the problem areas, not to solve every problem noted. Okay, so the goal here is that you just need to identify the problem area. You're not here to fix the problems. That is job of the producer, or the job is not yours. Again, and take written notes. ठीक है. Allocate resources and time schedule for FTRs. Again, because हमने कहा है कि जो formal reviews होते हैं, they are timed, पहले से pre-planned होते हैं, तो you need to allocate resources के कौन कौन करेगा, ठीक है, और कब कब करेगा. Use standards to avoid style disagreements. ठीक है. You should have proper standards. And let the coordinator run the meeting and maintain order. तो जो भी बंदा बीच में बैठा हुआ है, for example, डिज़ाइन टीम का काम है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाना. ठीक है. अब तो डिज़ाइन मैनेजर है, मे बी ही वुड बी द कोऑर्डिनेटर, और उसका जो बंदा है जो डिज़ाइन, जिस बंदे ने उस सर्टन एप्लीकेशन और प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाया, ही वुड बी द प्रोड्यूसर, एंड देयर विल बी रिव्यू. तो लेट द कोऑर्डिनेटर रन द मीटिंग. ही वुड बी बेसिकली इन चार्ज. ही वो कहेगा जी अच्छा आप बताएं, एंड देन ही विल आस्क रिव्यूअर्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. सो अगेन लेट हिम बी द इन चार्ज ऑफ द मीटिंग. And limit the number of participants and insist upon advanced preparation. Okay, develop a checklist for each work product to be reviewed. For example, if you're going to review SRS, तो उसकी checklist शायद different होगी. If you're going to review code, उसकी checklist different होगी. If you're going to review STS, उसकी checklist शायद different होगी. And you need to have training for all the reviewers. All the reviewers should know what their job is and how to basically, when they are checking an item in a list, what does that mean? Okay, and reviewing earlier reviews, keep it short. ठीक है. Don't schedule 2 in a row. So basically, you need to give some time. You need to have space between 2 reviews, and don't review product fragments. Always do the complete reviews. Okay, so these are the general guidelines that you should follow when you are conducting
when you are planning these formal technical reviews as a quality manager or as a person who ensures quality. Okay जी, then how do you actually measure the effectiveness of a review? ठीक है, क्योंकि आप the purpose is कि हमने एक रिव्यू किया और हमने ये भी कहा है कि जब हम क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हमने बग को ढूंढ लिया, ये इसके लिए तो टेस्टिंग भी है. इन क्वालिटी एश्योरेंस वी वांट टू इंश्योर कि हम जो एक दफ़ा हमने बग निकाला था उसको हमने फिक्स किया, अगली दफ़ा भी हम वही बग तो नहीं निकाल रहे. हमारा इसका जो रिव्यू का प्रोसेस है इसका फ़ायदा क्या हो रहा है. ओके, यहाँ पे there is a method which we use which we call defect amplification and removal method. It is used to illustrate the generation and detection of errors during design and code generation. This is specific to design and code generation. ठीक है, so what do we have here is कि normally हम क्या करते हैं कि अगर इस बॉक्स को देखें तो there are different fields in it. ठीक है, इसके अंदर एक कॉलम जो है वो कहता है डिफेक्ट्स, एक कहता है डिटेक्शन. ठीक है, हम अपने डिटेक्शन की एक परसेंट एफिशिएंसी फॉर एरर डिटेक्शन दे देते हैं कि इस फेज पे हमारी एरर डिटेक्शन की कितनी एफिशिएंसी है. ठीक है, और डिफेक्ट्स को हमने 3 तरह के डिफेक्ट्स में कैटेगराइज कर दिया. 2 तो बग्स वो हैं जो कि पिछली स्टेजेस से आ रहे हैं. ठीक है, उनको हम कहते हैं, पहले को हम कहते हैं एरर पास थ्रू. कुछ जो पुरानी स्टेज के एरर है वो तो ऐसे ही आगे चले जाएंगे, लेकिन कुछ एरर्स होते हैं वो एक सर्टेन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि हमने उनको पिछली स्टेज में शायद अनकवर नहीं किया और फिक्स नहीं किया. और कुछ उस पर्टिकुलर स्टेज के भी एरर होते हैं. ठीक है, और हर स्टेज के एरर इसी तरह पाइल अप होते जाते हैं. ठीक है, और अगर हमारी कोई एफिशिएंसी यहाँ पे नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारा ये डब्बा इस तरह का आ रहा था कि यहाँ पे हमारे पास 10 एरर थे, यहाँ पे भी 10 थे और नीचे नए 30 बने और हमारी एफिशिएंसी 0 है, तो आगे कितने एरर चले जाएंगे? 10 + 10 + 30, आगे 50 के 50 एरर्स ऐसे ही चले जाएंगे. लेकिन अगर हमारी यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो 50 है बग को रिमूव करने की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे 25 आगे जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि you actually are conducting and you're calculating the effectiveness of your reviews. Okay जी, so this is please bear with me because the slide is not readable. I will try to redraw that when we discuss it. Okay, so let's say कि यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा preliminary design है. ठीक है, और preliminary design के ऊपर हमने कहा कि हमारा जो error detection efficiency है that is 0. अच्छा, इस केस के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं वो वाला मेथड जिसके अंदर आप कोई रिव्यू नहीं कर रहे. तो वी आर ट्राइंग टू कंपेयर कि जब हम रिव्यू करते हैं उस वक्त उसका हमें क्या फ़ायदा होता है और अगर हम रिव्यू बिल्कुल ना करें, ठीक है, उसका हमें क्या, व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन 2 एग्जांपल्स. लेट्स से कहते हैं कि जी ये कंपनी ए है जो कि कोई रिव्यू नहीं करती और ये कंपनी बी है जो कि रिव्यू करती है. व्हाट इज़ द डिफरेंस? ठीक है, अच्छा जी, तो हमने कहा कि जी यहाँ पे शायद 0 एरर है, लेकिन इस प्रिलिमिनरी डिज़ाइन की स्टेज के ऊपर 10 एरर्स आगे आए. तो वो 10 में से हमने कह दिया कि जो 6 एरर थे वो तो ऐसे ही चले गए, जो हमने पिछले अपना डब्बा आपको मैंने एक्सप्लेन किया. 6 इधर आ गए. फिर हमने कहा कि जो 4 एरर है ना वो 1.5 से मल्टीप्लाई एम्पलीफाई हो जाएंगे. ठीक है, और 25 नए एरर स्टेज पे आ गए. और अगेन क्योंकि हम रिव्यू नहीं कर रहे, जब हम रिव्यू नहीं कर रहे तो कोई एरर डिटेक्ट ही नहीं हो रहा, तो इसी तरह ये सारे ऐड हो जाएंगे. 6 + 4 × 1.5, ये भी 6 हो गए. 12 + 25, तो आगे कितने आ गए? 37 एरर आगे आ गए. इसी तरह हमने कहा कि जो हमारा अगला बॉक्स है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोड/यूनिट टेस्टिंग. अब हमने यहाँ पे एक टेस्टिंग स्टार्ट कर दी. रिव्यू हम अभी भी नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि हमने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी तो टेस्टिंग से कुछ तो आप बग निकाल सकते हैं. ठीक है जी, तो हमने कहा कि इन 37 में से 10 हमारे इधर आ गए थे, 27 एरर्स एम्पलीफाई हो गए. ठीक है, और 25 हमने और निकाल लिया. ठीक है, हमने कहा हमारे यहाँ पे जो एरर डिटेक्शन की एफिशिएंसी है दैट इज 20%. तो ये हम इनको ऐड किया, 10 + 27 × 3. ठीक है, ये कितने हो गए? 81 + 10 91. ओके जी, एंड देन यू कैलकुलेट कि हमने कोड और यूनिट टेस्ट करना है. ठीक है, which is basically हमने क्या किया, हमने इन सारे एरर्स को ऐड किया. ठीक है, which becomes 91 + 25 which makes it 116. इसकी बेसिस के ऊपर जब आप निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी
94, यानी कि हमारे यहाँ पे आ गया 94 एरर आ गया, क्योंकि अब हम कोड और यूनिट टेस्टिंग भी साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे कैलकुलेशन सिंपल है। आगे क्या कहते हैं कि जी इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। हमने कहा हर टेस्टिंग की जो एफिशिएंसी है वो 50-50% है, इसकी भी 50% है, इसकी भी 50% है। ठीक है, और अब इस टेस्टिंग के अंदर हम कह रहे हैं कि पुराने एरर ही चल रहे हैं, अब नए एरर्स कोई नहीं आ रहे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और सिर्फ एरर्स आगे जाते जा रहे हैं। यानी कि 94 थे, इंटीग्रेशन में हमने 50% एफिशिएंसी के साथ कितने रह गए 47 के बाद रह गए 24, हर दफ़ा आधे होते जा रहे हैं, और आखिर में 24 से रह गए 12। तो जो लेटेंट एरर्स हैं, यानी कि जो एरर्स के साथ हमारी प्रोडक्ट अब निकल गई है, वो है 12। ओके जी, यानी कि यहाँ सिस्टम टेस्ट के बाद भी 12 एरर निकल आए हैं। तो ये वो एरर हैं जो कि सिस्टम टेस्टिंग के बाद भी बच गए हैं, 12। तो हमने जो, अगर आपको एक स्लाइड याद हो विच वी डिड इन आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन क्वालिटी एश्योरेंस, कि जब आप एरर लेट निकालते हैं तो दैट बिकम्स मोर कॉस्टली, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब देखें कि ये वो वाली एग्जाम्पल है कि जब हमारे कोई रिव्यू नहीं है। ओके जी, दूसरी एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर हम रिव्यूज करते जा रहे हैं साथ साथ। सो द फर्स्ट स्टेज इज ऑफ प्रिलिमिनरी डिजाइन। प्रिलिमिनरी डिजाइन के अंदर हमने क्या कहा कि अगेन इन दोनों के अंदर तो 0-0 है, क्योंकि पीछे से कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि हम डिजाइन और कोड जनरेशन ही देख रहे हैं। फिर हमने कहा कि इस स्टेज के ऊपर 10 एरर्स निकले, लेकिन क्योंकि अब ये सिनेरियोस दोनों डिफरेंट है, सिर्फ फर्क क्या है, क्योंकि हम रिव्यूज कर रहे हैं तो हर एक के अंदर हमारी, इन पिछली एग्जाम्पल के अंदर ये भी 0 था, ये भी 0 था, और ये भी यहाँ पे था क्योंकि ये यूनिट, लेकिन इन दोनों के अंदर यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी है। इस केस के अंदर हम कहते हैं हमारी एफिशिएंसी 70% है, इसके अंदर हमने कहा हमारी एफिशिएंसी 50% है। ठीक है, तो हमारे एरर्स अब शुरू से ही कम होना शुरू हो गए। जिस तरह यहाँ पे पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर, नो रिव्यूज वाले के अंदर यहाँ पे 10 एरर्स थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी 70% एफिशिएंसी है, तो 10 में से 70% हमने कम कर दिया, तो 3 एरर बच गए। यानी कि 3 हमने 7 पहले निकालिए, 3 आगे जा रहे हैं, और उन 3 में अगेन 2 तो उसी तरह जाएंगे, और आगे हमने कहा था 1.5 से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 और 1 इंटू 1.5, और नए एरर्स कितने 25 जो पिछली दफा भी थे। ठीक है, तो ये आप निकालें तो दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 29। तो 29 का हमने 50% किया, तो हमने कह दिया 15 एरर अब आगे जा रहे हैं। जबकि अगर आपको पिछला याद हो तो नो रिव्यूज वाले केस में इस स्टेज के ऊपर 37 एरर्स आगे जा रहे थे। ठीक है, अब 15 में से हमने कहा जी 5 एरर्स ऐसे हैं जो कि ऐसे ही जाएंगे, और 10 एरर जो हैं वो एम्पलीफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अगेन हमारी कैलकुलेशन क्या होगी 5 + 10 × 3, जो कि कितना हो गया 30, और 25 ये कितना बन गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 60। ठीक है जी, तो अगर आप देखें कि यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर नो रिव्यूज वाले केस में आगे 37 एरर्स आ रहे थे, वेयर एज इन दिस केस ओनली 15 एरर्स आर गोइंग अहेड। तो 15 के केस के अंदर 15 एरर जब आगे जा रहे हैं, और 5 हमने कहा वैसे ही जाएंगे, 10 एम्पलीफाई हो रहे हैं, तो ये हो गया 10 × 3 + 5 35, और 35 + 25 आपके पास 60 एरर्स आ गए। अब 60 में से हमने कहा हमारी एरर निकालने की एफिशिएंसी 50% है। ठीक है, क्योंकि हम रिव्यू भी कर रहे हैं और कोड और यूनिट टेस्ट भी कर रहे हैं। तो 60% जब हमारी एफिशिएंसी है, तो 60 में से कितने बच गए 24 एरर बच गए। ठीक है, तो 24 हमारे यहाँ पे बचे, और हमने क्या किया 24 जब आगे गए तो 24 और हमने 50% क्योंकि हमारी हर टेस्टिंग की एफिशिएंसी है, तो 12 रह गए, 12 से 6 रह गए, 6 से 3 बच गए। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। इफ यू गाइस रिमेंबर दैट वी डिस्कस्ड दैट इफ वी अनकवर एरर्स अर्लियर, तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो हमें कम पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह ये हमने इन दोनों एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि हमें दोनों केसेस के अंदर कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। रिव्यू वाले केस में हमारी एरर की कॉस्ट कितनी निकल रही है, और बगैर रिव्यूज के कॉस्ट कितनी निकल रही है। हमने यहाँ पे भी कॉस्ट का यूनिट नहीं डिस्कस करेंगे, विल जस्ट कैलकुलेट सम नंबर्स। ओके जी, जिस तरह अगर आप रिव्यूज वाला केस देखें, उसके अंदर ड्यूरिंग डिजाइन हमने कितने एरर निकाले हैं। अगर आपको याद हो पिछली स्लाइड से कि प्रिलिमिनरी डिजाइन वाली स्टेज के ऊपर हमने 7 एरर कम किए क्योंकि हमारी एफिशिएंसी 70% थी, और डिटेल डिजाइन वाली स्टेज के ऊपर क्योंकि हमारी एफिशिएंसी 50% थी, तो टोटल 30 में से हमने 15 एरर यहीं पे निकाल दिए। तो हमारे ड्यूरिंग डिजाइन एरर्स कितने हो गए 22। तो ये हमारा नंबर यहाँ पे आ गया, जिसके अंदर हमने क्या किया कि 7 + 15, दैट इज द एरर दैट वी हैव फिक्स्ड ड्यूरिंग डिजाइन। ओके, देन जो डिजाइन हमने बिफोर टेस्ट किए, जो कि बेसिकली डिजाइनिंग के बाद और टेस्टिंग से पहले हमने कितने एरर काम किए, वो कितने हो गए हमारे, हमने 36 एरर्स, क्योंकि यहाँ पे 60 टोटल थे और हमारी एफिशिएंसी थी 60%, तो 24 आगे गए, 36 हमने यहीं पे खत्म कर दिए थे। तो ये वो है जो आपके बेसिकली 60 का हमने निकाला था 40%, जो कि हमने रिमूव कर दिया था। तो हमारी कितनी हो गई 36 एरर्स यहाँ पे आ गए, जो कि हमने बिफोर टेस्टिंग। फिर
ड्यूरिंग टेस्टिंग हमने कितने एरर नंबर किए, तो देयर इज सम मिस्टेक इन दिस टेबल। तो ड्यूरिंग टेस्टिंग एक्चुअली हमने 21 एरर्स रिमूव किए। वो कैसे? दैट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन कि यहाँ पे 24 थे, इधर 12 बचे, तो यहाँ पे हमारे कितने आ गए, यानी कि 12 हमने निकाले इधर, 6 हमने निकाले इधर और 3 हमने निकाले इधर। तो 12 + 6 18 + 3 इज 21। तो हमने कहा कि जी 21 जो एरर थे वो हमने ड्यूरिंग टेस्टिंग निकाले और 3 जो है वो आखिर में बचे। तो हमने इन सब को अगर निकालें कि जो ड्यूरिंग डिजाइन एरर्स की यूनिट कॉस्ट हमने कहा है 1.5 है, फिर एक एरर को रिमूव करने की कॉस्ट बिफोर टेस्टिंग है 6.5 और ड्यूरिंग टेस्टिंग एरर को रिमूव करने की कॉस्ट है 15 और आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग एरर को रिमूव करने की कॉस्ट है 67। तो बेस्ड ऑन दिस नंबर हमने कहा कि जी 783 हमें कॉस्ट पड़ी है अपने एरर्स को रिमूव करने की विद रिव्यूज वाले केस में। दिस इज केस ऑफ विद रिव्यूज। अब हमने यहाँ पे यूनिट नहीं बताया कि 783,000 है, लाख है, जो भी है। ओके जी। इसी तरह जो नो रिव्यूज वाला केस है उसके अंदर अगर हम देखते हैं हमारी यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ी है एरर्स को रिमूव करने की, तो इफ यू लुक एट दैट एग्जांपल, तो रिव्यूज वाले केस के अंदर हमारा अगर आप देखें ड्यूरिंग डिजाइन हमने कितने एरर रिमूव किए हैं बिफोर टेस्टिंग, क्योंकि देखिए ड्यूरिंग डिजाइन तो हम रिव्यू कर ही नहीं रहे, यहाँ पे हमारी इन एफिशिएंसी क्या है 0, इन स्टेजेस के ऊपर हमने कोई भी एरर नहीं रिमूव किए। हमने जो वाहिद तरह के एरर रिमूव किए हैं वो इसी स्टेज पर किए हैं, ठीक है। और वो कितने हैं? वो है 116, क्योंकि टोटल एरर्स थे यहाँ पे 116, उसमें से माइनस करेंगे 94 तो कितने आ जाते हैं 22 एरर सिर्फ हमने रिमूव किए थे। वो किस वजह से रिमूव किए थे? जो हमने यूनिट टेस्टिंग की थी। तो ये हमारे पास आगे वो 22 एरर्स। फिर हमारे पास आगे कि हमने ड्यूरिंग टेस्टिंग कितने किए, तो वो किस तरह है 47 + 24 + 12, तो दिस टर्न्स आउट टू बी समवेयर क्लोज टू 82। तो ये 82 हमने निकाले ड्यूरिंग टेस्टिंग और 12 आखिर में बच गए। अगेन हम वो ऊपर वाली जो हमारी कॉस्टिंग की वैल्यूज हैं वही लेते हैं कि बिफोर टेस्टिंग एरर रिमूव करने की कॉस्ट हमने निकाली है 6.5, ड्यूरिंग टेस्टिंग 15, जो हमने ऊपर भी कॉस्ट की वैल्यूज हम वही यूज कर रहे हैं यूनिट कॉस्ट, और आफ्टर रिलीज या आफ्टर सिस्टम टेस्ट 67 है। तो आप देखें कि कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, इट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, कॉस्ट 3 टाइम बढ़ गई है। पहले में थी 783, इसके अंदर आएगी 2177, एंड दिस इज द केस ऑफ नो रिव्यूज। सो यू कैन सी कि दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग रिव्यूज, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ कोड जनरेशन और डिजाइन जनरेशन और कोडिंग वाली स्टेज की हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिव्यूज के विद रिव्यूज वाले केस के अंदर हमारी कॉस्ट कितनी कम हो गई है इन कंपैरिजन टू केस वेयर वी कंडक्ट नो रिव्यूज। ओके जी, and then there are different metrics that can be used and they are defined for conducting these reviews. ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रिपरेशन एफर्ट, कि एक रिव्यू को बनाने के लिए आपका कितनी एफर्ट लगी है, हाउ मेनी आवर्स यू हैव पुट इन, एंड व्हाट इज द असेसमेंट एफर्ट, असेसमेंट के अंदर एक्चुअली आपका टाइम कितना लगा है, एंड व्हाट इज द रीवर्क एफर्ट, आपने जो काम आइडेंटिफाई किया उसको सही करने में कितना एफर्ट लगेगी, एंड व्हाट इज द वर्क प्रोडक्ट साइज। फॉर एग्जांपल आप पेजेस की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कोड है तो लाइंस ऑफ कोड की फॉर्म में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके अंदर आपको माइनर एरर्स कितने मिले और मेजर एरर्स कितने मिले, ऑन द बेसिस ऑफ दैट you can basically come up with different review metrics. So we can define basically different review matrices, and then we on the basis of that we can gauge कि हमारे इस review का what is the advantage of that particular review, ठीक है, how much we have gained. Okay, we will continue with that discussion in the next lecture. Now let's quickly summarize as to what we have covered in our the second lecture on software quality assurance. So we started the lecture with defining के what are the goals of software quality assurance. उसके अंदर हमने देखा हमारे 4 मेन गोल्स हैं। Number 1 goal is software quality assurance का पहला गोल क्या है कि the requirements that you produce आप चाहते हैं कि यार वो अच्छी क्वालिटी की हो। Second goal is related to design quality. Third goal is related to code quality. Fourth goal is quality control effectiveness. ठीक, फिर हमने क्या कहा कि फॉर ईच ऑफ दीज गोल्स वी हैव सर्टेन एट्रीब्यूट्स, कि रिक्वायरमेंट क्वालिटी के हमारे एट्रीब्यूट्स क्या है कि इट शुड बी अनएम्बिगुअस, ठीक है, फिर इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, इट शुड बी ट्रेसेबल। हमने कहा कि हर इस एट्रीब्यूट को फिर हम गेज करने के लिए, इसको मायर करने के लिए वी हैव सर्टेन मैट्रिक्स, ठीक है, वी यूज दिस मैट्रिक्स टू से कि हमारी रिक्वायरमेंट्स एम्बिगुअस नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे एम्बिगुअस मॉडिफायर्स हैं, हम लार्ज, मैनी, मिनिमल, गुड, इस तरह के टर्म्स ढूंढते हैं। जितनी इस तरह की टर्म्स मिलें, अगर ज़्यादा मिलेंगी तो हम कहेंगे हमारी रिक्वायरमेंट जो है, हमारे पास एक नंबर आ जाएगा कि यार इतनी परसेंट, 100 में से 50 रिक्वायरमेंट में ये वर्ड्स हैं, तो हम कहते हैं 50% रिक्वायरमेंट जो है एम्बिगुअस है। सो वी हैव अ मायर नेट, ठीक है।
तो इसी तरह इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, हमारे डिजाइन के भी थे, आर्किटेक्चरल इंटेग्रिटी था, कंपोनेंट कंप्लीटनेस था, दीज वर द टू एट्रीब्यूट्स। फिर इन एट्रीब्यूट्स को देयर वर डिफरेंट मैट्रिक्स दैट कैन बी यूज्ड टू इंश्योर कि हमारे ये डिजाइन अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है। Okay, after that we moved on to SQA plan. We said okay, we make every organization they wants to have a software quality assurance in place in their company, they can make a plan. ठीक है, उस plan के अंदर they start off with the management section, then you have, आप फिर specify करते हैं कि किस किस तरह के documents आपने बनाने और उन document को बनाने का क्या तरीका है. So you make everything that should be part of making sure that you have a quality assurance procedure in place, you make it part of their plan. ठीक है. And then we discussed that what do we mean by formal technical reviews. We discussed various things about them. Number one, we said कि जो आपके formal technical reviews होते हैं, they are planned, ठीक है, and it consists of 3 to 5 people, ठीक है, और normally we discussed कि किस तरह के लोग review करते हैं, ठीक है. We said कि there is a presenter, there is a coordinator, there are reviewers and the producer. So they are part of this formal technical review. हमने देखा कि प्रोडक्ट के शुरू में जो रिव्यूज होते हैं they tend to be informal and they tend to be short. उसकी वजह क्या है कि शुरू में चीजें बड़ी कम बनी होती और लेटेस्ट स्टेजेस के ऊपर आपके रिव्यू फॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं. देन वी सेड कि जो आपके रिव्यूज हैं, वी डिस्कस्ड वेरियस गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग दीज रिव्यूज. वी सेड कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम्फसाइज्ड ऑन कि यू नीड टू मेक श्योर दैट द प्रोड्यूसर नोज कि यू आर नॉट रिव्यूइंग द प्रोड्यूसर, यू एक्चुअली रिव्यूइंग द वर्क प्रोडक्ट. यू नीड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लिसिटली टेल हिम, लेकिन द एनवायरनमेंट शुड सजेस्ट कि आप उसके काम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उसको नहीं क्रिटिसाइज कर रहे. ठीक. फिर द अदर गाइडलाइंस इंक्लूडेड कि यू शुड नॉट डिबेट अबाउट सर्टेन पॉइंट्स. ठीक है, यू शुड प्रिपेयर वेल. ठीक है, और यू नो अगेन लेट द कोऑर्डिनेटर हैंडल द मीटिंग. ठीक है, और देयर शुड बी फॉर्मल प्रोसीजर्स इन प्लेस कि आप ये चीजें रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं. ठीक है. देन वी मूव्ड ऑन टू स्टैटिस्टिकल एसक्यूए, क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि क्वालिटी अगेन इट्स अ वेग टर्म. अब जब तक आपके पास नंबर्स नहीं होंगे यू कैन नॉट गेज कि यार मेरी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है या खराब हो रही है. ठीक है, you need to know and that you can only know with the base of numbers. हमने कहा कि there are different techniques which can be used. एक हमने टेक्निक को बड़ा briefly जिसको डिस्कस किया, that is Six Sigma. ठीक है, and that is one of the most used statistical SQA technique. ठीक है, और फिर हमने कहा कि SQA के अंदर एक तो उसकी कोर 3 चीजें होती हैं. ठीक है, फिर अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन प्लेस है और you want to improve it, तो then the core थिंग्स कैन बी ऑगमेंटेड विद कि आप देखें कि उसको आपके जो वाइटल फ्यू कॉजेज थे एरर्स के उनको रिमूव करने का क्या तरीका होगा. ठीक है, और फिर इसी तरह अगर आपका कोई भी प्रोसेस इन प्लेस नहीं है तो आप एक नया प्रोसेस बनाते हैं. ठीक है, जो कि वो कॉजेज को ना आने दे और फिर आप उसको वो वेरीफाई भी करते हैं. तो वी डिस्कस्ड वेरी ब्रीफली Six Sigma एंड देन वी सेड कि यू वांट टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ एरर्स. ठीक है, उसके अंदर हमने देखा कि एक एग्जांपल हमने डिस्कस की कि जो आपके मेन एरर के कॉज होते हैं उसमें सबसे बड़ा कॉज होता है इनकम्प्लीट और एरोनियस स्पेसिफिकेशन, मिसकम्युनिकेशन ऑफ कस्टमर और एरर इन डाटा रिप्रेजेंटेशन. दीज आर द 3 मेन कॉजेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एरर्स इन योर प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो हमने जब अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी है तो हमने इन कॉजेज को कम करना है. इफ वी कंट्रोल देम तो दिस विल इंश्योर कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ एरर्स तो खुद ही कम हो जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एसक्यूए. देन वी सॉ एडवांटेज ऑफ रिव्यूज, और उस रिव्यूज का भी हमने स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किए. वी डिस्कस्ड अ पर्टिकुलर सिनेरियो जिसके अंदर हमने कहा कि विद रिव्यूज वाले केस के अंदर हमारी यूनिट कॉस्ट थी अप्रोक्सीमेटली 800 और विदाउट रिव्यूज के अंदर हमारी वही एरर रिमूव करने की कॉस्ट बढ़ के होगी 2200. ठीक, सो वी कंपेयर्ड के द केस वे वी कंडक्ट द रिव्यूज, द यूनिट कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एरर्स या जो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एरर्स है दैट इज 3 times लेस जब आपने रिव्यूज कंडक्ट किए हैं. ठीक है, then the case where you do not conduct any reviews. So this is the advantage of having reviews in place, and this is the advantage of statistical SQA that you can gauge how much you have actually gained by having these quality assurance procedures in place. So that's it from today's lecture, and take care, and inshallah in the next lecture we'll complete our discussion of software quality assurance and then we'll move on to the next topic. Assalamu alaikum.